Good evening, everyone. I am Akash Rajpuria. I would be taking your linear regression class today. Okay, so this is the first step in machine learning. Like, if you know what is machine learning, it is very good. That is a prerequisite of this lecture. You should know basic understanding of what is machine learning, classification or regression, difference between classification and regression. And the first step we will start today is linear regression. Overall, you can view a video as well. I will provide you the description link in the description. Okay, if you want to understand in great depth what is machine learning, what is classification and regression. And don't worry, in this lecture also I will take in short what is machine learning, what is classification, what is regression, and then we will move forward to the linear regression. Okay, so just stay with me till the end of this video. I will provide you the PPT as well as we will be doing the coding as well in the last part. Okay, so we will take a real world data set, that is car dekho. Okay, the website is there, so we will predict the car prices in that. Yes, so let's get started. You can see on the image on the screen, we have an image in which a human is finding some measurements from a dot and a line. Okay, so that is in short. If I say you or give a you hint what is today's lecture about, this is the all lecture about. Okay, so in this lecture we will understand how to make machine do this, how to make a machine do the same thing. Okay, like how a machine can do the same thing what a human is doing. Okay, so for this we need to think in the linear fashion. Okay, so just let's now get started with our today's agenda. Okay, so for this you can see some bullet points of today's agenda. We will be seeing what is linear regression, and that what is simple and multiple linear regression. Then there are multiple excepts, expects in that is slope intercept. Okay, then we will see whether our line is good or not. Okay, and for that we will use a simple machine learning model, that is least square method. So everything would be clear in a very simple manner. Okay, so it's time to get started now. Okay, so now first thing, you should know what is machine learning. Okay, so machine learning is a simple thing, like you need to make machine learn. Okay, so like we make a newborn baby learn, in the same way we make a machine learn. Like, there are, I will take all the things with the help of examples only. So मशीन लर्निंग में जैसे हम नए बच्चे को एक सिखाते हैं कोई चीज समझना कैसे, वैसे ही हम मशीन को भी सिखाएंगे. ओके, सो वी हैव टू पार्ट्स फॉर इट. वन इज सुपरवाइज. ओके, supervised learning. Second is unsupervised learning. Okay, in supervised learning the difference in both of them is only we have labels here. Okay, and in this we don't have any labels, no labels, simple as that. So for example, our task is now, sorry, yes. So just a sec. Yeah. So you have a newborn baby in your house, and your task is to make that baby, like after 1 or 2 years, understand what is a cat. Cat recognition is our goal or task. Okay. So in supervised learning, what you do is, sorry. Yes. So in supervised learning, what you do, you take a cat picture. Okay, in which there would be a cat somewhere sitting in the picture. Okay, and you will label this as a cat. Okay, now this label is called as supervision. And in unsupervised learning you don't have labels at all, you just have the images. For example, you will have a cat image here with no label. Okay, same way you have a dog image but with no label. Okay, so now kid will understand it by default whether it is a cat or whether it is a dog. Okay, simple as that. It will not label it is a cat, but if he or she sees a similar picture in this way, okay, he can identify that this picture is different from the this different pictures. Okay, afterward you can label it, that is cat, that is dog. Okay, so that is the difference between supervised and unsupervised. In supervised you have labels, in unsupervised you don't have labels at all. Okay, just that is the only difference between supervised and unsupervised. So yes, now the next part in this is, I think the supervised part is clear to each one of you.
So yes, we will see the next part of it, that is in supervise also we have sub branches, that is regression and classification. So classification and regression on this side. So the difference between those two is also very simple. Like in classification you would have categories. Okay, so if I write here, it would be category. Like in category it would be, it can cat and dog as a category type, and in regression it is a continuous. Okay, so what you mean by continuous now? Continuous is like the house price prediction. Okay, so in price prediction the price is in the continuous range, like 1 lakh, 1.1 lakh, okay, or 1.2 lakh, or 2 lakhs, 3 lakhs, in this way. So these are not categories, these are continuous. Okay, but this is a category, cat and dog. So what we are doing in this lecture is, starting from machine learning in supervised, we will see only focus on the regression problem, that is simple linear regression. Okay, so regression here means continuous values. So whenever you have a continuous values, you want to find some continuous values, you will use regression problem. Okay, so in this way, this is our journey of why we started regression problem. Okay, in some other video we will see what is classification as well, but for this we will focus on regression. Okay, so basically in short I will explain you what is what we are doing in this lecture is, simply we are going from supervised learning, that is we have labels with us. Okay, and in that labels we will go deep down into linear regression. Okay, so you have understood what is regression here, that is continuous, and now we will understand what is linear regression with a very simple problem. Okay, so the topic is linear regression. Okay. So you have understand now the regression is the continuous. Okay, so now our task is sales versus advertisement. Like you can see, you have seen many times when you are on internet, or you see a form like this. In the form you have different columns in which you have here TV. So for example, there is a company name XYZ. Okay, so this is the company of a particular person XYZ, and a company wants to know whether the person or people coming to that uh, uh, company through which advertisement. Okay, like TV advertisement, it could be newspaper, it could be YouTube as well. Okay, or many other fields would be there. So if you click TV, so now based on this data it will spend some marketing budget on this. For example, they are getting more ads from TV, so they might spend more on TV. Okay, so what the company XYZ has done, it has taken this data, like the TV spent. So this part is spent in lakhs. So this is a dummy data, so you can understand in that way. So this is TV data. Okay, in sales, TV in lakhs. So I will explain you everything in this. This is lakh, and the sales are is, for example, in crore. So what it has done for this, yes, so these are in crores. So what this advertisement company XYZ has done is, it has taken, it has plotted this data. This is a scatter plot. Okay, so in scatter plot, what is done? It has taken, for example, this point. So it is maybe approximately 37 or 47 lakhs. Okay, for example, this point is 37 lakhs. So at 37 lakhs, it may have the sales values corresponding to 7 crores. Okay, so in this way, from taking a spreadsheet, they have plotted this scatter plot. We will see how to plot this in Python as well in today's lecture. So this is the data. Now what you want to do, your task is to, for example, now company spends something 220 lakhs 220 lakhs on TV. What would be my sales at that point? How much that would be the sales? You want to only predict that. So that is the task. Okay, same way would be for car prediction as well. So this part, this TV is called as independent feature. Okay, so this feature has nothing, is dependent on nothing, that is why it is independent. Okay, but this sales is dependent on this TV feature. Okay, so this is called as target variable. Okay, target variable, target feature, or dependent variable it is called as, because it is dependent for its value on some other variable. Okay, अगर टीवी की वैल्यूज टीवी के ऊपर मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा तो मेरा सेल्स कुछ ज्यादा स्पेंड होगा, ठीक है, सेल्स मेरा ज्यादा बढ़ेगा. Okay, so in this way, this is dependent, this is independent. That is the two terminologies used in machine learning. ठीक है, ये समझना जरूरी था बस. अब क्या है लीनियर, मतलब क्या?
ओके, सो हमने रिग्रेशन देख लिया, रिग्रेशन मतलब कंटिन्यूअस। सो हमारा टास्क इधर क्या है, द टास्क इज वी वांट टू प्रेडिक्ट द सेल्स। सो सेल्स प्रेडिक्ट करना है। अब सेल्स कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस में, जैसे आप देख सकते हो 5 हो सकता है, 6 7 8 9 इन दिस वे, 25 26 26 7 ऐसा करोड़ में है, बट दिस इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू, दैट इज व्हाई इट इज रिग्रेशन। अब लीनियर का मतलब क्या है, सिंपल, लीनियर मींस अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। So what I want to do is based on this data I want to fit a line on this, ठीक है, कि कुछ मैंने ऐसी लाइन फिट कर दी, ठीक है। अगर अब मुझे चाहिए कि 110 अगर मैं लाख 1110 लाख अगर टीवी पे स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरा सेल्स की वैल्यू कितनी आएंगे, तो जस्ट मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लूंगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लूंगा, एंड आई विल गेट कि मुझे 12 करोड़ सेल्स मिलेगा अगर मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज द ओवरऑल इंटुएशन ऑफ द वीडियो। आई जस्ट वांट टू प्लॉट दिस लाइन ओवर माय डेटा, ओके। सो अब ये लाइन प्लॉट करने में बहुत सारे चैलेंजेस है, वो चैलेंज हम धीरे धीरे देखने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल, आप कोई भी ऐसे ही प्रॉब्लम ले सकते हो लीनियर रिग्रेशन में। लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, इट स्टेट्स दैट अगर मैं टीवी का ऊपर सेल्स सॉरी टीवी के ऊपर खर्चा ज्यादा करता हूँ, इफ आई स्पेंड एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी मोर, व्हाट इफेक्ट वुड बी ऑन द सेल्स, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप बताता है बेसिकली ये, कि अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये डिक्रीज होगा या कम होगा, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में वापस से क्या है लीनियर रिग्रेशन, इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस वे, हाउ मच माई वाई वैल्यू इज चेंजिंग, ठीक है। अगर मैं पूरा एक्स को इतना ऊपर लेके चलेगा और वाई इतना ही बढ़ा, ठीक है, सो दैट इज रिलेशनशिप। दूसरा भी एक चीज हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा वाई की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टाइम स्पेंट, ठीक है, दिस इज द टाइम स्पेंट ऑन फेसबुक, ठीक है, ये है टाइम स्पेंट ऑन फेसबुक, और ये यहाँ पे है मार्क्स गेन्ड, ठीक है, मार्क्स है। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं टाइम काफी ज्यादा फेसबुक पे स्पेंड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने दिन के 9 घंटे स्पेंड किए, यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड किया, ठीक है। अगर 1 घंटा स्पेंड किया तो मेरे मार्क्स कुछ काफी अच्छे हैं, मतलब कि यहाँ पे मुझे 99 मार्क्स मिले। और मैं 9 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे मार्क्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। मेरे मार्क्स हो गए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए 12 मार्क्स आ गए, ओके। सो 8 घंटे में 12 मार्क्स। सो इन दिस वे आई वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप कि अगर मैं टाइम ऑफ फेसबुक बढ़ा रहा हूँ तो मेरा मार्क्स पे कितना आ रहा है, ठीक है। यही पूरा है, दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। So we will see this in much more detail. So this is just a simple definition. Linear regression model tries to explain the relationship between dependent and independent variables. तो अब हमने देख लिया what is dependent, what is independent, दोनों चीज हमने काफी अच्छे से समझ ली है, ठीक है। So yes, you can see that this is, yes, sorry. So this is my simple linear regression. अब उसमें भी simple linear regression और multi linear regression, we have two types. Simple linear regression, you will have only one variable, okay, that is one variable. In that you have seen in previous also, TV was one variable, okay, and sales, so dependent variable will always be one, okay. So sales जैसे यहाँ पे है, it is one variable, it will remain one only, okay. But my features can be different things. अब हो सकता है कि मेरी सेल्स की वैल्यू जो है वो टीवी के ऊपर से भी बढ़ रही है, एंड वन मोर अदर फैक्टर एज वेल, लाइक गिविंग द एडवर्टाइजमेंट एट अ प्रॉपर टाइम, ठीक है। जैसे कि आईपीएल में मैं अगर मेरी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तो देन ओनली इट इज इंक्रीजिंग माय सेल्स। तो दो फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे फीचर्स एक से ज्यादा है, जैसे इसमें सिर्फ मैंने टीवी लिया, अब मैं एक और फीचर डाल दूं कि प्रॉपर टाइम, ओके, सो देन इट वुड बी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल, आप देख सकते हो इसमें वेट और हॉर्स पावर है, जैसा हमारा कार प्राइस प्रेडिक्शन है, तो वेट और हॉर्स पावर दो फीचर्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब ये 3D में चले गया, इसके लिए दैट इज वाई मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। एक लाइन की जगह पे यहाँ पे लीनियर प्लेन हो जाएगा, ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब इसमें टारगेट वेरिएबल है मेरा MPG, ओके, माइल्स पर गैलन ऐसा कुछ है वो, ओके। सो अगर मैं वेट और हॉर्स पावर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा MPG बढ़ रहा है या नहीं। इन दिस वे आई जस्ट वांट टू मैप द रिलेशनशिप, ठीक है। सो लीनियर रिग्रेशन सिंपल हो या मल्टीपल हो, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि रिलेशनशिप निकालना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, ठीक है। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में डिपेंडेंट क्या हो गए, कैन एनीवन गेस, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन पॉज एंड गेस इट। इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होंगे, वेट और हॉर्स पावर, ठीक है। सो दिस आर टू डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, दिस आर टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये इंडिपेंडेंट, सॉरी, दिस टू आर
independent variables, okay, and this one is dependent variable. In this way, y is dependent here, x is independent here. Okay, so in this way you can understand the dependent and independent and the simple definition that is written over here. Okay, so that was all about simple linear regression. Models the linear relationship between one independent and one dependent variable. Models the relationship between one dependent एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो मैंने आपको समझाया वही थ्योरी में बाद में एज ए रूप ऑफ ज्ञान इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो इसे। बेसिकली सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, सो अब हमें क्या करना है, सिंपल आपने सिंपल डेटा से समझ लिया। व्हाट आई वांट टू डू इन लीनियर रिग्रेशन इज, हम इसके अंदर ये वीडियो में सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे। दैट इज आई वांट टू प्लॉट अ लाइन हियर, ठीक है। अब वो लाइन ऐसी हो सकती है, ठीक है। सो लाइन में मुझे दो ही चीज चाहिए, दैट इज वन इज स्लोप, ठीक है। अगर आप इफ यू नो मैथ स्टैटिस्टिक्स, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग। ओके, सो फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिक्स पार्ट एज वेल। हमें इसमें कोड सिर्फ लाइब्रेरीज उठाना है, दैट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब ये है मेरी सिंपल लाइन, इसके अंदर मुझे दो चीज निकालना है, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट, ठीक है। तो दोनों चीज हम समझते हैं लाइन बाय लाइन, व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यस, सो वेरी सिंपल। स्लोप क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो y, सॉरी मेरी y की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है अगर मैं x चेंज कर रहा हूं तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी वही देखा था, सिंपल वापस से वही बताऊंगा मैं। ये हमारी लाइन है, तो दिस इज फॉर एग्जांपल स्लोप, ठीक है। इसका ये स्लोप है कुछ इस टाइप से, हमने एक लाइन फिट कर दी इस डेटा पे इस टाइप की, ठीक है, और एक ये बना दिया। तो दिस इज स्लोप की मैं मेरा x इतना, ठीक है। आई विल प्लॉट दिस पार्ट हियर, so it will be very clear for you what I am explaining, ठीक है। so if I am changing my x with 1 unit, okay, so इसको आप 1 यूनिट समझो, मतलब 10 100 लाख से अगर मैं 101 लाख तक पहुंच गया तो मेरा सेल्स कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेदर इट इज गोइंग फ्रॉम 11 करोड़ टू 12 करोड़ और इट इज गोइंग फ्रॉम 11 करोड़ टू 3 करोड़, दैट इज चेंज इन y with respect to change in x is called as slope, ठीक है। ये स्लोप ऑफ लाइन बताता है, अगर स्लोप ऐसा रहा तो ये छोटा रहेगा चेंज, ठीक है। स्लोप ऐसा रहा तो ये स्लोप बड़ा रहेगा, ठीक है। सो बेस्ड वी जस्ट वांट टू फाइंड द स्लोप, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया लाइन समझने का। सेकंड इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट भी काफी इजी है। इंटरसेप्ट मतलब कि अगर मेरी x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो मेरा y क्या है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कैसे यूज होता है, अगर हाउस प्रेडिक्शन की प्राइस कर रहे हो, ठीक है, कि अगर मुझे हाउस का प्रेडिक्शन करना है, मेरा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना है कि मेरी हाउस की प्राइस क्या रहेगी, ठीक है। एक वेरिएबल आपके पास है स्क्वायर किलोमीटर्स, मेरे हाउस की साइज स्क्वायर किलोमीटर्स में, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे है प्राइस। नाउ मुंबई में ऐसा, आई डोंट नो आप कहाँ रहते हो, बट हाँ मुंबई में ऐसा भी है कि अ पर्टिकुलर प्लेस हैव अ हाई वैल्यू, ठीक है। वो पहले से ही बायस्ड है वो जगह, मतलब कि अगर आप मरीन ड्राइव के पास अगर कोई घर ले रहे हो तो वो वैसे ही हाई रहेगा। स्क्वायर किलोमीटर तो अलग बात हो गई, वहां पे बेस प्राइस ही ज्यादा चालू होता है। इवन इफ माई स्क्वायर किलोमीटर इज 0 बट माई प्राइस इज समवॉट देयर, ठीक है, so that is called as intercept, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लो बस सिंपल कि अगर मेरी x की वैल्यू कुछ नहीं रही तो भी मेरी y की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। अब हमें सिर्फ दो चीज इसमें निकालना है, फर्स्ट इज दिस स्लोप, ठीक है, दैट इज राइज अपॉन रन, ओके, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, जो मैंने लिखा है जो समझाया है वही सब यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो राइज अपॉन रन, तो मुझे एक चीज निकालना है, दिस इज m, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप, ओके। ये स्लोप यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है। सेकेंड थिंग आई वांट टू फाइंड इज इंटरसेप्ट, ओके, जस्ट द फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equals to 0, ठीक है। मेरी x की वैल्यू 0 है फिर भी y कुछ ना कुछ है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये मेरा इंटरसेप्ट हो गया, ये मेरा y हो गया। अब y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये लाइन की इक्वेशन है। अब लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। मुझे सिर्फ दो चीज इसमें निकालना है, m और c, ठीक है। सो ये काम m और c निकालने का काम मशीन लर्निंग करता है, ओके। सो यस, अब उसके अंदर भी काफी सारे पॉइंट्स है। फर्स्ट इज आपका कुछ इस टाइप से डेटा है, ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स है, ओके। सो अब मैं आपको इसमें चैलेंजेस बताता हूँ। चैलेंजेस क्या है कि लाइन कहाँ भी हो सकती है, दिस कैन बी द लाइन, दिस कैन बी द लाइन, दिस कैन बी द लाइन, ओके, लाइन ऐसी भी हो सकती है। नाउ द थिंग इज कि हाउ आई डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट लाइन, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव एजेंडा बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है एंड एवरीथिंग इज गुड।
ओके, सो बेस्ट फिट लाइन क्या है, ये मेरे डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ, डिपेंडेंट यहाँ, कोई भी आप प्रॉब्लम ले सकते हो, सेम उसमें अप्लाई होगा। ओके, सो ये मेरे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है कि मतलब मेरी x की वैल्यू कुछ यहाँ पे ऐसी है तो y की वैल्यू कुछ यहाँ पे ऐसी है। ओके, सो दिस आर माय एक्चुअल ग्रीन आर माय एक्चुअल पॉइंट्स, यू कैन सी दैट। नाउ मैंने क्या किया, कुछ मॉडल बना दिया और एक ये लाइन प्रेडिक्ट कर दी, ठीक है, दिस इज माय लीनियर रिग्रेशन लाइन। ओके, सो अब ये लाइन बेस्ट है या नहीं, ये मुझे पता करना है। कैसे पता करूंगा, वेरी सिंपल, आई विल टेक दिस पॉइंट, ओके, और ये लाइन मतलब मेरी प्रेडिक्टेड लाइन है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक लाइन, अगर आई वांट टू फाइंड कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन पे सिंपल दो परपेंडिकुलर निकालूंगा, ये वाला, ठीक है। मेरी एक्चुअल पॉइंट तो ये है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, बट मैंने क्या प्रेडिक्ट किया, ये वाला प्रेडिक्ट किया, ठीक है। अब ये प्रेडिक्शन कितना रॉन्ग है, उस बेस पे हम बेस्ट लाइन निकालेंगे। ओके, सो दिस इज माय सम वैल्यू, दिस इज सम वैल्यू। सो व्हाट आई हैव डन इज, इन दोनों का डिफरेंस लेना है बस हमें, दैट इज कॉल्ड एज रेसिड्यूअल। ये प्रेडिक्टेड पॉइंट माइनस द एक्चुअल पॉइंट इज कॉल्ड एज एरर, कि कितनी गलती की है मैंने। अगर आप बोल रहे हो कि मैच कोई, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि घर की प्राइस है 20 लाख, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो 20 लाख, बट जब ओरिजिनल वहां पे कोई ब्रोकर गया और उसने देखा तो प्राइस सिर्फ भाई 2 लाख, ठीक है, तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज रेसिड्यूअल, मतलब 18 लाख का आपका एरर हो गया। तो आप क्या करोगे कि जितनी बार आपने प्रेडिक्शन किया, आप पूरे इसका एरर निकालोगे, ये एरर, ये एरर, ये एरर, इन दिस वे दिस आर रेसिड्यूल्स। इन सब रेसिड्यूल्स को जमा करोगे, ओके, सम करोगे, स्क्वायर करके सम करोगे और आपको उससे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वो वैल्यू को आपको सबसे कम करना है। ओके, फॉर एग्जांपल दो लोग खड़े हैं, ठीक है, किसी ने बोला 2 लाख प्राइस है, उसने 3 लाख बोला, ठीक है, आपने 20 लाख बोला, तो आपका डिफरेंस यहाँ बढ़ गया। नेक्स्ट टाइम उसने 4 लाख बोला, आपने वापस से 20 लाख बोला, ठीक है, फिर भी आपका डिफरेंस ज्यादा है। ओके, सो आप क्या करोगे, दोनों टाइम डिफरेंस को ऐड करोगे। ओरिजिनल प्राइस इज 2 लाख, 2 माइनस 1, 1 इधर आ गया, इधर 2 माइनस ओरिजिनल प्राइस इज 2, तो यहाँ 2 आ गया। तो आप सिंपल बस इन सब की एडिशंस करोगे, दिस इज 5। ओके, सो मेरी वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 आई यहाँ पे, और यहाँ कितनी आई, 18 लाख और 18 लाख, ठीक है, दैट इज 36। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, ओके सॉरी, 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, ठीक है, उस टाइप से आप देख सकते हो कि ये वैल्यू सबसे कम है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। सो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा सेकंड बंदे ने बोला, मतलब कि जिसने 2 और 3, वो लाइन बेस्ट है। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं उनके बीच का, ओके, उनका स्क्वायर कर रहे हैं, एक मिनिमम एक वैल्यू आएगी। हमारा टास्क क्या है, उस वैल्यू को सबसे नीचे लेके आना, ठीक है। अब कोई लाइन अगर मैं ऐसी प्लॉट करूं, मैं वापस से इन सब का डिफरेंस देखूंगा, ठीक है, इन डिफरेंस को ऐड करूंगा स्क्वायर करके, ओके, एक वैल्यू आएगी मेरे पास x। मैं क्या बोलूंगा कि जो वैल्यू मेरे पास लेस है, सबसे लेस जिस लाइन की वैल्यू आई, दैट इज माय बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है बेस्ट फिट लाइन का, सिंपल एज दैट। सो यहाँ लिखा है रेसिडुअल एरर इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड। ओके, ईच डेटा पॉइंट हैज ओन एरर और रेसिडुअल, ये इसका एक हर डेटा पॉइंट का अपना रेसिडुअल रहेगा। इन अदर वर्ड्स, रेसिडुअल इज द एरर दैट इजंट बिटवीन करेक्ट, सॉरी, दैट इज बिटवीन, ये होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज बिटवीन करेक्ट पॉइंट एंड द पॉइंट यू प्रेडिक्टेड, ठीक है, वो एरर है करेक्ट पॉइंट और प्रेडिक्टेड पॉइंट का, सॉरी, यस, करेक्ट और प्रेडिक्टेड पॉइंट का एरर है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए सिंपल हमने वही ओएलएस मेथड यूज किया है, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर्स का सम्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल। ओके, अब उसके लिए मशीन लर्निंग में एक अपने को मेथड दी है, दैट इज ओएलएस मेथड। ओके, ओएलएस इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। मतलब क्या है कि आप जो यहाँ पे एरर निकाल रहे हैं उनका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, उस स्क्वायर का लीस्ट निकालना है हमें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ओएलएस। अब ये डायग्राम देखने में हार्ड लगी होगी, बट काफी ज्यादा इजी है। ये हमारे प्रेडिक्टेड लाइन सेम, ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स, हमने दोनों का डिफरेंस निकाला y2 माइनस y, ये हमारा एरर हो गया, ठीक है, ये एरर देखो यहाँ पे। अब इस एरर का मैंने सम लिया सिंपली, ओके, और हर सम, ठीक है, ये पॉइंट का एरर निकाला, सम लिया, ओके, सेम वे ये पॉइंट का एरर निकाला, सम लिया, इन सबको ऐड कर दिया बस, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड आई वांट टू मिनिमाइज दैट पॉइंट, ठीक है। वो एक जो वैल्यू आएगी वो जो सबसे कम रहेगी, दैट इज माय ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल मेथड है। अब आपको इसमें कोडिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, जब आपको ये मेथड को यूज करना है बस, सब आपसे पहले से इंप्लीमेंटेड है। ओके, मशीन लर्निंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यू शुड नो हाउ टू फाइंड अ मीन। मैं एग्जांपल दूंगा कि आपके पास 10 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको मीन निकालना आना चाहिए कि इन सबका एडिशन लिया, डिवाइडेड बाय 5 किया, ठीक है, दैट इज मीन। बट आपको क्या करना पड़ता है,
मशीन लर्निंग में ये आपको इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता है कि टेक एवरी पॉइंट एंड डिवाइड बाय 5। आप सिंपल एवरेज एक फंक्शन ले सकते हो, उसमें ये पॉइंट्स दे सकते हो 1 2 3 4 5 और वो आपको वैल्यू देगा। ओके, जो भी वैल्यू रहेगी आपको फॉर्मूला कहीं नहीं लिखना है। सेम वे आपको ओएलएस का फॉर्मूला नहीं लिखना है, बट आपको पीछे का बैकग्राउंड मालूम रहना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन इन मच डिटेल व्हाट इज ओएलएस, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब एक बार समराइज करेंगे सब चीज, बट कोड करने के बाद। ठीक है, सो इट्स टाइम फॉर कोडिंग। सो मैंने क्या किया है, सिंपल एक डेटा सेट लिया है, व्हीकल डेटा सेट फ्रॉम कार देखो। ठीक है, कैगल का डेटा सेट आप देख सकते हो, ये कार देखो वेबसाइट से डेटा सेट लिया है। इसके अंदर ईयर है, सेलिंग प्राइस है, किलोमीटर ड्रिवन है, फ्यूल है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट फीचर्स है। हम एक ही फीचर्स पे फोकस करने वाले हैं, दैट इज किलोमीटर ड्रिवन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, दैट इज नम्पी लगेगा, पांडास लगेगा, 2 लाइब्रेरी और लगेंगी, धीरे धीरे लेंगे। ठीक है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। ओके, अब मैंने फाइल को रीड कर लिया, ये उसका नाम ही ऐसा है CSV फाइल। आप देख सकते हो ये मेजर, इसमें मेजर क्या, हर ही चीज इसके अंदर कैटेगरी है। ठीक है, बेसिकली सिर्फ 2 छोड़ के, सेलिंग प्राइस और किलोमीटर। अब सेलिंग प्राइस हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज टारगेट, और किलोमीटर ड्रिवन इज अवर इंडिपेंडेंट। इस डेटा सेट के लिए मैंने सिर्फ ये 2 फीचर्स का यूज किया है, और इस पे हम सिर्फ समझ रहे हैं लीनियर रिग्रेशन वर्क कैसा करता है, मॉडल बनाना हमारा टास्क नहीं है। ठीक है, हमारा सिर्फ समझना टास्क है। तो शेप देख लिया, शेप 8 है हमारे पास टोटल कॉलम्स। ठीक है, और वैल्यूज कितनी है, 4000 वैल्यूज है। ओके, अब इन्फो देखो, एक भी नल वैल्यूज नहीं है, नहीं तो हमको कुछ करना पड़ता है इसमें प्रोसेसिंग, आउटलायर्स वगैरह मैंने देखा नहीं। ठीक है, वो कोई और लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमारा इसमें लीनियर रिग्रेशन समझना है, ना कि ईडीए करना है। ठीक है, तो डेटा को विजुअलाइज किया, विजुअलाइजेशन में मैटप्लॉटलिब और सीबॉन लिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू दी इसमें, दैट इज किलोमीटर ड्रिवन, यू कैन सी दैट। ओके, और y की वैल्यू दी, तो जो मैंने स्कैटर प्लॉट आपको पीपीटी में बताया था, कुछ उस टाइप का स्कैटर प्लॉट यहाँ पे बनाया है। ठीक है, सेम चीज है, ये हमारा इस टाइप का डेटा है। अब आप देख सकते हो कि डेटा ज्यादातर लीनियर नहीं है। ओके, सो ठीक है, आप कोरिलेशन वगैरह इसमें प्लॉट कर सकते हो, देख सकते हो कोरिलेशन माइनस है। ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता, आप कमेंट करो कि आई वांट टू लर्न दिस, मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा ईडीए पे, दैट इज हीट मैप, कोरिलेशन, ये प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, और इसमें से क्या क्या स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, क्या अजम्पशन लेते हैं। ओके, ये सब चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कमेंट कर देना। ओके, ओके, सो अब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला है y इक्वल्स टू mx प्लस जी। आपको कहीं पे ये इंप्लीमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको फीचर्स देना है। x क्या है मेरा, कार ड्रिवन। ओके, y क्या है, सेलिंग प्राइस। अब ये दोनों मैंने x एंड y में ले लिया, ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट किया सिंपली, ताकि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखने के लिए, जरूरत नहीं थी इसमें, बट ठीक है, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। तो अगर आपको चाहिए तो सिर्फ आप x पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो हम एक काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है, इसमें हमने 70 और 30% स्प्लिट किया है। ओके, यूज नहीं किया कहीं पे, बस स्प्लिट करके रखा। इफ यू वांट आई कैन डिलीट दिस कोड, हम सिर्फ x और y लेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ x और y की वैल्यू पास करेंगे। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा x, सॉरी, यस, सो यहाँ पे मैंने y ट्रेन दे दिया, सो मुझे y देना पड़ेगा यहाँ। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मॉडल फिट हो गया। इसमें क्या किया मैंने वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली जो ओएलएस मेथड है वो क्या करता है, इंटरसेप्ट को नहीं लेता है। ओके, अब इंटरसेप्ट नहीं लेता मतलब आपका ये समझो यहाँ पे कुछ इस टाइप का डेटा है, कुछ इस टाइप का आपका डेटा है, तो वो क्या बोलता है कि एवरी लाइन पासेस फ्रॉम द ओरिजिन ओनली। ठीक है, वो इंटरसेप्ट को गिनता ही नहीं है। दैट इज, अगर आपने इंटरसेप्ट नहीं लिया, जैसे हमारा इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, अगर आपने यहाँ पे c नहीं लिया तो एवरी टाइम इट विल स्टार्ट द लाइन फ्रॉम जीरो। तो ठीक है, हो सकता है कि आपका कभी डेटा ऐसा ना हो, आपका डेटा कुछ इस टाइप से हो। ठीक है, अब इसमें यहाँ से लाइन प्लॉट करना मतलब कि गलत होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन प्लॉट करेंगे। सो दिस इज इंटरसेप्ट। सो ये हमें बाय डिफॉल्ट ऐड करना पड़ता है ओएलएस मेथड में। ठीक है, दैट इज स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई से मैंने ये यूज किया है। ठीक है, तो ऐड कांस्टेंट मतलब कि हम उसको बोल रहे हैं कि आप ये यूज करो सी की वैल्यू इसके अंदर। ठीक है, तो सी हमने ऐड किया इसके अंदर यूजिंग ऐड कांस्टेंट, इसमें x प्रोवाइड किया जो हमारा x डेटा है। ठीक है, फिर जस्ट सिंपली एक फिट मेथड यूज करना है आपको, डॉट फिट। ठीक है, अब ये मेथड क्या करेगा, हमारा y डेटा लेगा। ठीक है, और ये वाला डेटा लेगा जिसके अंदर हमने कांस्टेंट ऐड किया। ठीक है, अगर आपको कांस्टेंट ऐड नहीं करना, आप फर्म हो कि ये जीरो से स्टार्ट करेगा, तो ये स्टेप आप
स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों इसमें पास किया, ओएलएस मेथड, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो मैंने आपको समझाया अभी, ये सब आपको इंप्लीमेंट करके देगा, ठीक है। और सब इटरेशंस होने के बाद इट विल गिव यू सम पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स में दो ही चीजें हमारे पास इसमें, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो x हमारा हो गया, सॉरी x तो हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज दिस वन इज अवर x, m इसने हमको दिया, दिस इज कॉल्ड एज द m, ठीक है। द स्लोप का कोएफिशिएंट -2 आया, ठीक है। और कांस्टेंट क्या आया, कांस्टेंट की भी कोई एक वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स लेके हम लाइन बना के देखेंगे हमारे डेटा पे, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया, x की वैल्यू ली, सॉरी मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, दिस इज c, ठीक है, प्लस m, जो हमारी m की वैल्यू है, यहाँ पे m की वैल्यू फिट की, यहाँ पे c की वैल्यू फिट की, ठीक है, इनटू x, ओके, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया x की वैल्यू के साथ में, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि वी हैव गॉट अस अवर सिंपल लाइन, ठीक है। सो यहाँ मैंने एक स्ट्रेन लिया था, अभी हमने वो हटा दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ से सब चीज, जस्ट लेट मी रब इट ऑफ। सो मैंने पहले ट्रेनिंग और टेस्ट प्लेट में स्प्रेड किया था, बट हम वो यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का इसने मॉडल हमें बना के दिया, ओके। सो अब ये बोल रहा है कि अगर जितने किलोमीटर्स आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब आपका किलोमीटर, अगर आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल रही है तो आपकी प्राइस कुछ यहाँ है, फिर बढ़ते जा रही है, तो ये आप देखो 80,000 किलोमीटर के बाद तो ये बोल रहा है कि वैल्यूज कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है। सो इन दिस वे इट इज प्रिडिक्टिंग सम वॉइस। यहाँ बेसिकली ये मॉडल हमारा उतना राइट नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट फिट लाइन यूजिंग ओएलएस मेथड, ओके। अब आप समरी लेके पूरा हमारा मॉडल कैसा फिट हुआ है वो सब चीजें देख सकते हो, ओके। आर स्क्वायर वगैरह ये सब आप चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हर पैरामीटर इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जस्ट कमेंट कि आपको क्या पार्ट सीखना है, ठीक है। अभी हम मॉडल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें सिर्फ लीनियर रिग्रेशन दिखना था, ठीक है। तो ये लीनियर रिग्रेशन की सिंपल लाइन हमने प्लॉट कर दी यूजिंग दिस किलोमीटर्स और ये वाई, ओके। सो दैट वाज अ रियल डेटा सेट। इन दिस वे हम स्टार्ट हमने कैसे किया, मैं एक बार समराइज करूंगा टोटल में। हमने स्टार्ट किया सिंपल लीनियर रिग्रेशन से, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन का मतलब कि हमारी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हम ये डिफरेंस बना, ये हम मशीन को करने बोलेंगे, तो मशीन ने हमारा डिफरेंस निकाला पॉइंट से, ओके, और ये हमारे प्रेडिक्टेड लाइन से, ठीक है। तो मशीन ने लीनियरली थिंक करके सॉल्व कर लिया। एजेंडा में हमने सब चीज देख ली, रेसिडुअल समझ लिए कि क्या डिफरेंस रहता था, ओके। डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू इज योर रेसिडुअल। स्लोप समझ लिया, y अपॉन x का डिफरेंस, कि हम y x कितना चेंज कर रहे हैं तो y चेंज होगा, दैट इज स्लोप, ठीक है। इंटरसेप्ट, अगर y की x की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो y की वैल्यू क्या है, दैट इज इंटरसेप्ट, ओके। सिंपल और मल्टीपल में डिफरेंस समझ लिया कि ज्यादा वेरिएबल्स है हमारे पास x में, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो से ज्यादा है तो मल्टीपल, एक वेरिएबल पे हमने काम करके देख लिया, दैट इज सिंपल, ओके। अब ओएलएस मेथड से हमने इंप्लीमेंट करके भी देख लिया कि कैसे हम एक सिंपल लाइन प्लॉट करेंगे, ओके। सो that was all about starting from machine learning to complete coding a linear regression problem. If you like this, please click the like video. नहीं पसंद आया तो dislike करो, क्या नहीं पसंद आया please comment out करो, okay. और last चीज, if you want this PPT, just drop your email ID in the comment section, मैं ये पूरी PPT आपको भेज दूंगा, okay. So it would be easy for you to summarize. Next time अगर आपको linear regression पढ़ना है तो आप सिर्फ PPT देख सकते हो and you can read it. So आप सिर्फ comment में आपकी email ID दो and I will do that, okay. That's all for today. In next lecture we will see some more interesting topic, might be multiple linear regression or in depth what is this parameters in OLS, ठीक है। आपको जो समझना है that just give the link, sorry, just give your topic in the end. अगर आपको ये एक एक वेरिएबल समझना है इसमें कि कैसे मॉडल को जज करते हैं, मैं वो बता दूंगा, okay. Just comment it out. So that's all for today's lecture, okay. So we will meet now next time. Till then, take care, good night, bye bye, and don't forget to subscribe the channel, okay, and add your email ID for this PPT, okay. So that's all, thank you.